اگر عربی زبان کا نام سن کر آپ کا دل خوش ہوتا ہے تو یقین کریں آپ میں عربی روح موجود ہے، بس اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے ساتھ عربی سلسلے میں جڑیں اور روزانہ عربی سیکھیں۔ جو نئے ہیں تو وہ 2 پرانی ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اور آج کی ویڈیو بھی پوری دیکھیں، انشاءاللہ ہم کچھ نیا سیکھیں گے۔ آج ہم تلکا اور ہاذہ ان دونوں کے بارے میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس سے ہم کتنے جملے بنا سکتے ہیں، کتنے سوالات بنا سکتے ہیں اور ان کو ہم کتنا پھیلا سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے پاس کوئی لفظ ہو تو اس لفظ کو پھیلانا سیکھیں کہ اس ایک لفظ کو آپ کتنا پھیلا سکتے ہیں، کتنے جملے بنا سکتے ہیں، اس پر چھوٹا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ جتنی پریکٹس کریں گے تو اتنا ہی وہ لینگویج آپ کو آئے گی۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو کمنٹ کریں، ہم سے پوچھیں، ہم کمنٹ پڑھتے بھی ہیں، اس کا رپلائی بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو جزاک اللہ لکھ دیں۔ اگر مزید کوئی بہتری کا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بلا جھجک دے دیا کریں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تلکا جب کوئی شخص یا چیز دور ہو اور وہ فیمیل ہو، جب کوئی شخص یا چیز دور ہو اور وہ فیمیل ہو تو اس کے لیے ہم تلکا سے اشارہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں تلکا وہ۔ اب اس سے ہم یہ جملے بنائیں گے، تلکا سیارتن، وہ ایک گاڑی ہے۔ تلکا سیارتن، وہ ایک گاڑی ہے۔ سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں۔ تلکا سلمہ، وہ سلمہ ہے۔ تلکا صغریٰ، وہ صغریٰ ہے۔ تلکا ثلاجۃ الحمراء، وہ فریج سرخ، وہ سرخ فریج ہے، ریڈ فریج ہے۔ اب اسی تلکا سے ہم سوالیہ بنائیں گے۔ تلکا سے پہلے جب آپ نے حمزہ لگا دیا، تلک المروحہ، کیا وہ پنکھا ہے؟ تلک المروحہ، کیا وہ پنکھا ہے؟ اسی طرح تلکا سے پہلے اگر آپ حل لگاتے ہیں، حل تلک شجرۃ، کیا وہ درخت ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں ایوہ نعم شجرۃ، نعم مروحۃ۔ ما تلکا سے پہلے ما لگائیں تو ما تلکا، وہ کیا ہے؟ ما تلکا، وہ کیا ہے؟ ما تلکا، وہ کیا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں بیطاریہ، وہ بیٹری ہے۔ موبائل کے بیٹری کو بھی کہتے ہیں، دوسری بیٹری کو بھی کہتے ہیں جو UPS وغیرہ پہ چلتی ہے۔ ما تلکا، وہ کیا ہے؟ تلکا بیطاریۃ۔ تلکا سے پہلے اگر آپ من لگا دیتے ہیں، من کا معنی ہوتا ہے کون، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو من کا معنی ہے کون۔ تلکا، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو جواب ہوگا تلکا صالحۃ، وہ صالحہ ہے۔ اب من سے پہلے آپ لی لگا دیں، لمن تلک الکراسہ، من تلکا کس کی؟ لی، من تلکا، وہ کس کی؟ کراسہ کاپی، لمن تلک الکراسہ، وہ کس کی کاپی ہے؟
जब आपको बताया कि तिल का कोई चीज़ दूर हो और फीमेल हो, तो फीमेल का हमें कैसे पता चलेगा कि ये लफ्ज़ फीमेल है या नहीं है? तो इसी में हमने इशारा किया कि फीमेल जो लफ्ज़ होता है उसके आखिर में गोल ता होती है। सय्यारतुन, गुरफ़तुन, सय्यारतुन गाड़ी, गुरफ़तुन कमरा, मिरवाहतुन पंखा, शजरतुन दरख्त, बितारियतुन बैटरी, स्वालिहतुन कुरासतुन, जितने भी अल्फाज हैं ये सारे फीमेल। एक निशानी तो फीमेल लफ्ज़ की ये हो गई कि उसके आखिर में ये गोलता होती है। दूसरी निशानी ये हो गई कि ये खड़ी ज़बर होती है, सलमा, सुगरा, कुबरा, तो ये भी फीमेल लफ्ज़ है, तिल का सलमा। और तीसरी निशानी ये होती है अलहमराउ, इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। अलहमराउ, अलिफ के बाद अगर हमज़ा होता है तो ये भी फीमेल लफ्ज़ की अलामत होती है। तिल का सल्लाजतुल हमरा, वो रेड फ्रेज है। अब इस तरफ आ जाते हैं। अगर हम इसी जुमले के साथ जगह का बताएं, तिलकल मिरवाहतु, वो पंखा फिल गुरफती, कमरे में है। तिलका सय्यारा, वो गाड़ी अमामल मदरसा, स्कूल के सामने है। अमाम कहते सामने को, मदरसा कहते हैं स्कूल को। अमामल मदरसा, स्कूल के सामने है। इसमें हमने तिलका से वो जुमला बनाया जिसमें हमने जगह के बारे में बताया कि वो पंखा कमरे में है। तिलका सय्यारा अमामल मदरसा, वो गाड़ी अमामल मदरसा, स्कूल के सामने है। अब इसमें हम निस्बत को बताएंगे कि जिसमें एक चीज़ की निस्बत दूसरे की तरफ हो रही है, तो तिलका से निस्बत वाला जुमला किस तरह बना सकते हैं कि एक चीज़ की निस्बत हम दूसरी चीज़ की तरफ करें। तिलका उम्मु जवेरिया, वो वालिदा है जवेरिया की। वालिदा की निस्बत आपने देखा जवेरिया की तरफ है, वो वालिदा है जवेरिया की। तिलका मदरसतु आसिमा, वो स्कूल है आसिमा का। मदरसतु आसिमा, इसमें हमने निस्बत वाले जुमले बनाए। इसमें अगर हम सिफ्त लगाते हैं, तिलकल कुर्रासतुल जदीदा, वो नई कापी। कुर्रासतुल जदीदा, वो नई कापी। तिलका शजरतुन कदीमतुन, वो पुराना दरख्त। शजरा दरख्त, कदीमतुन पुराना दरख्त। अब तिलका के बारे में हमने देखा कि इस तिलका को हमने कितना फैलाया, कितने जुमले बनाए और कितने सवालात बनाए। अब हाज़िही और तिलका ये दोनों सेम हैं, बस फ़र्क इतना है कि हाज़िही ये करीब की चीज़ के लिए होता है, करीब फीमेल लफ्ज़ के लिए, और ये दूर के लिए, बस इतना फ़र्क है। अब फिर इसी पर आ जाए, तिलका की जगह पर आप हाज़िही लगा देते हैं। तिलका सय्यारतुन का मतलब था वो एक गाड़ी है। अब इसकी जगह पे हम कहेंगे हाज़िही सय्यारतुन, वो एक गाड़ी है। तिलका को हटा दें, इसकी जगह पे हाज़िही लगा दें। हाज़िही सलमा, हाज़िही सल्लाजा फ्रेज, हाज़िही, ये सवाल बनाए अहाज़िहिल मिरवाहा, अहाज़िहिल मिरवाहा, क्या वो पंखा है। हल हाज़िही, हल हाज़िही शजरतुन, क्या वो दरख्त है। माँ लगा दें, माँ हाज़िही, वो क्या है। जवाब में कहना है हाज़िही बितारियतुन। मन हाज़िही, वो कौन है। हाज़िही फ़ातिमातुन, वो फ़ातिमा है।
लिमन हाजिही, जहाँ जहाँ पर भी ये तिल का लगा हुआ है तो आपने इसकी जगह पर हाजी हाजी लगाते जाएं तो तिल का माना हो जाएगा वो, हाजी का माना हो जाएगा ये। अब जिस तरह यहाँ पर वजाहत की, अब गुरफतुन फ़ीमेल लफ्ज़ है क्योंकि इसके आखिर में ये गोल ता है, तो इससे हमें ये पता चला कि ये फ़ीमेल लफ्ज़ है। अब इसके साथ अगर तिल का लगाएं, तिल का गुरफतुन वो एक कमरा है, हाज़िही गुरफतुन ये एक कमरा है। सुबूरतुन कहते हैं वाइट बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को, तो तिल का अगर हम इसके साथ लगाएं, तिल का सुबूरतुन वो ब्लैक बोर्ड है, हाजी सुबूरतुन वो ब्लैक बोर्ड है। आजकल उसकी जगह पे वाइट बोर्ड यूज़ होते हैं। तिल का सुबूरतुन वो ब्लैक बोर्ड है, हाजी सुबूरतुन ये ब्लैक बोर्ड है। अब यहाँ पर आ जाए, जगह को बताएं हाज़िही के साथ। हाज़िहिल मिरवाहतु फिल गुरफ़ा, ये पंखा कमरे में है। हाज़िही सय्यारतु अमामल मदरसा, ये गाड़ी स्कूल के सामने। हाज़िही उम्मु जवेरिया, ये वालिदा है जवेरिया की। हाज़िही मदरसतु आसिमा, ये मदरसा है, ये स्कूल है आसिमा का। हाज़िहिल कुरासतुल जदीदा, ये कापी नई। तिल का शजरतुन कदीमतुन, इसकी जगह पे हाज़िही लगाएं, ये दरख्त पुराना दरख्त। अब यहाँ पर आपने अच्छे से देख लिया होगा, सिर्फ हमने एक लफ्ज़ लिया और उस एक लफ्ज़ को हमने इतना फैला दिया, फिर हमने ये लिया और इससे भी हमने ये सब फैला दिया। अब आप एक लफ्ज़ को लें या फिर आप इसी तिल का को लें और हाज़िही को लें और आप हमें बताएं कि आप इस एक लफ्ज़ को कितना फैला सकते हैं, कितने जुमले बना सकते हैं और इसको कितने जुमले बना सकते हैं और इस पर आप कितना लिख सकते हैं। आप हमें कमेंट करें। अगर आप ये रोज़ाना की बुनियाद पर अरबी सीखना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में कमेंट करें। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो जज़ाकल्लाह लिखें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दूसरों को फ़ायदा हो। जज़ाकुमुल्लाह।